Kangana versus Supriya Srinath matter. This controversy refuses to die down. It erupted after a derogatory remark. A statement on Kangana Ranaut was shared on Congress leader Supriya Srinath's official Instagram account. Kangana condemned the Congress party for sexualizing a small town's name, accused them of displaying sexist tendencies, stressing the importance of dignity for every woman. Women netas of the BJP like Smriti Irani, Khushbu Sundar came out in the support of the Saffron Clan's Lok Sabha candidate from Mandi, that is Kangana Ranaut. Remember, Supriya Srinath has clarified and said the post against Kangana wasn't by her but by someone else who had access to her social media accounts. H.S. Ahir, a Congress leader from Gujarat, also made a similar lewd remark on his Twitter against actor Kangana Ranaut. Appalled by Congress netas, National Commission for Women wrote to the Election Commission of India demanding an immediate and strict action against them, seeking a report within 3 days. हमने जो है उस पे रिएक्शन दिया है। मेरी जो है मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। जैसे Ashutosh Mishra is getting us more details on this story this afternoon. Ashutosh, we understand that Kangana Ranaut is going to be meeting with, in fact, the national president of the Bharatiya Janata Party at 8:30 p.m. this evening. There are two timings eventually which is coming from the sources. One is even at 4 p.m. So that means 45 minutes from now, possibility of Kangana Ranaut meeting JP Nadda. But so far, this is the only information that we have at the moment. However, the timing is yet not confirmed. And he also said that this could be also even at 8:30 this evening. So this comes in a light that she will be contesting from Mandi on the BJP ticket. So that could be the one reason she is meeting party president. She landed at Delhi airport and in fact did not speak anything on the recent controversy and specifically that objectionable comments posted on Supriya Srinath's handle against Kangana Ranaut. However, while departing from Chandigarh, she did say that there should be respect to the woman. Doesn't matter what they do with regards to this. There has to be a basic respect for the woman, and clearly that we see the BJP is actually on aggressively cornering the Congress entire leadership as far as the posts made on Supriya Srinath's handles are concerned. However, she refused that it wasn't done by her. Someone who had access to Supriya Srinath's account literally made it. But for now, the BJP is really going very aggressive on that. So Kangana clearly hasn't said anything much. We'll have to see after meeting if she makes some remarks on that. Ashutosh getting us those details as far as the meeting with JP Nadda is concerned. She's arrived in Delhi. Ashutosh is telling us that the meeting could happen at 4 or at 8:30. A series of reactions have been coming in as far as this controversy between her and Supriya Srinath is concerned. Let's take a listen. जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता है और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट जो थे वो दूसरे कई लोग डील कर रहे थे। पहले उनकी गठबंधन की एक नेता है जिनके प्रश्न वाले अकाउंट विदेश से डील हो रहे थे। अब कांग्रेस की आप ये समझिए, जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं। वे बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो बातें हैं, इनके अकाउंट्स कहां से डील होते हैं, ये देश को समझना चाहिए। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस
पार्टी की असल मानसिकता क्या है कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। एक महिला होकर एक महिला का अपमान कर रही हैं और उनको वह मंडी से खड़े होने पर उनका रेट पूछ रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और घृणित बात हो नहीं सकती। अपेक्षा करें कि सुप्रिया शिरने तुरंत के तुरंत इस्तीफा दें स्पोक्स पर्सन से और माफी मांगे। एनसीडब्ल्यू ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट दर्ज करी कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सुप्रिया शिरने कह रही कि अकाउंट मेरा कई लोगों के पास एक्सेस था, तो वो आइडेंटिफाई करें उसको और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है और उस टिप्पणी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणियां उसमें और करी है। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये कांग्रेस भूल गई है क्या? तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं, तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी, उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। You are currently the Congress MP from Mandi. Comments like this against a woman, how would you respond to that? You have one Congress neta from Gujarat echoing the same version of what was posted on Supriya Srinath, asking Mandi mein kya daam hai, with Kangana's photograph. Don't know what that means. क्या दाम है, कोई वो ऐसी थोड़ा नहीं है। किसी के बारे में, महिला के बारे में ऐसा बात बोलनी शोभनीय नहीं लगता। But I don't know in what context this has been said. Listen to what Supriya Srinath had said in her defense. मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला।